This is the index return, for example, of last 30 years, 7.82%. If you just miss 10 best days, your return comes down to 5%. If you miss 20 days, your return comes to 3.323 days. If you miss 30 best days, your return comes to 1.68. If you miss 40 days, your return comes to 0.3. And if you miss 50 days, your return goes negative. मतलब करीबन करीबन 30 साल में अगर आपने 50 बड़े दिन मिस कर दिए ना, तो आपका रिटर्न नेगेटिव आ जाएगा। ऑल वेदर रिटर्न मतलब क्या है? वे सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश हो, रिटर्न आना चाहिए। तेजी हो, मंदी हो, साइडवेज हो, अपना जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है, जो ट्रेडिंग में लगा है, उसमें कुछ न कुछ रिटर्न आना चाहिए। तो वो रिटर्न कैसे पाया जा सकता है, इसका ये फ्रेमवर्क है। इट इज सेड दैट द ओनली फ्री लंच इज डाइवर्सिफिकेशन। ओके, डाइवर्सिफिकेशन इज द ओनली फ्री लंच। डाइवर्सिफिकेशन कैसे अचीव किया जा सकता है? It can be achieved by diversifying to different asset. What is an asset? Real estate is an asset. Gold is an asset. Silver is an asset. Equity is an asset. Options strategy is a category. Again, it can be qualified asset. Bond is an asset. Alag commodities, different agriculture commodity, live cattle, coffee, tea, sub asset hai. What happens is when you have only one asset, your risk to return is 0.25, for example, and the probability of losing money in a given year is 40%. As you diversify across 20 assets, this 0.25 goes to 2.5. मतलब it increases by the factor of 10. Okay, risk to reward 10 times increase होता है और probability of losing your जो 40% था, it reduces to 1%. मतलब virtually if you run 15 assets, probability of losing your is almost nil. तो आपको एक hedge fund mindset देगा। एक आप हेज फंड खुद कर सकते हो, बना सकते हो, हेज फंड की तरह ट्रेड कर सकते हो। हेलो दोस्तों, मैं राकेश पुजारा, कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स फाउंडिंग पार्टनर लेके आया हूँ आपके लिए मास्टर क्लास इन एल्गोरिथम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। सरप्राइज्ड? मैं आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट। यस, एल्गोरिथम्स कैन बी यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट एज वेल। आज हम सीखेंगे सिस्टमैटिक ट्रेडिंग और एल्गोरिथम ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए बिफोर वी गो लाइव, और वी आर गोइंग टू गिव यू फ्यू स्ट्रैटेजीज टू वर्क विथ। हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हम आपकी ये जर्नी, सिस्टमैटिक ट्रेडर बनने की जो जर्नी है, इसे हम चालू कर पाए। और हम आशा करते हैं आफ्टर दिस लॉन्ग वीडियो आपको पूरा लैंडस्केप, जो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का लैंडस्केप है, पूरा पता चलेगा। फिर आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप उस पर फॉलोअप करिए, इसमें फर्दर रिसर्च करिए, फर्दर स्टडी करिए और अपने आप को हेल्प करिए। ये एक बहुत ही लंबा वीडियो है, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीडियो जो की टेक अवेज है वो जीवन का बेस्ट होगा, पर्टिकुलरली इफ़ यू आर एक्टिव इन स्टॉक मार्केट, आइदर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। तो चलिए चालू करते हैं मास्टर क्लास इन एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। मेरे बारे में मैं आपको कुछ बता दूं, मैं करीबन करीबन 25 ईयर्स से ये मार्केट में हूँ। Initial years of my life, I spent with a broker's office for 20 years, and then I founded this company called Compounding Wealth Advisors. And my company is 7 years old. We are SEBI registered investment advisor. We advise clients for investing as well as trading. And before founding this company, I was there as a CEO of Naman Securities for 20 years. ठीक है। आवर ऑब्जेक्टिव, हमारा स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग जो है वो सिस्टमैटिक है, कम्प्लीटली रूल ड्रिवन है, और we keep on developing new systems, rule driven systems, and everything that rotates around stock market. And this is about my company. My company name is Compounding Wealth Advisors. We are 7-year-old company. Our vision is to consistently deliver superior risk adjusted return for our clients and enable them to significantly compound their wealth. So this was our introduction. Let us start with a basic definition of an algorithm. What is an algorithm? Algorithm is a step-by-step procedure designed to perform an operation which will lead to short results if followed correctly. Let us understand कि कितने टाइप्स के एल्गोरिदम्स हैं। एल्गोरिदम्स का क्लासिफिकेशन हम लोग दो कैटेगरी में करेंगे। एक है पर्पस, दूसरा है टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, पर्पस क्या हो सकता है? एल्गोरिदम का पर्पस होता है अल्फा जनरेशन, मतलब रिटर्न जनरेशन, और इट कैन बी प्योर एग्जीक्यूशन। ओके, कि आपको 1 लाख शेयर लेना है तो कैसे लेना है, कभी लेना है, क्या टाइम पे लेना है, क्या क्वांटिटी में, क्या स्लाइसिंग होना चाहिए, एग्जीक्यूशन एल्गोरिदम्स। ओके, एंड अल्फा जनरेशन में देयर कैन बी वेरियस एल्गोरिदम्स बेस्ड ऑन ट्रेंड फॉलोइंग, आर्बिटर स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने अभी निफ्टी का जो स्ट्रैटेजी बताया, बाय करंट एंड सेल नेक्स्ट, दैट कैन बी आर्बिटर स्ट्रैटेजी। ओके, market making, mean reversion, various option strategies like buying, selling, directional, non-directional,
एग्जीक्यूशन में हो सकता है मार्केट मेकिंग, यू आर कॉन्स्टेंटली बीड एंड आस्क आप देते हो, उसको मार्केट मेकिंग बोलते हैं। Second example of execution is buy 10 lakh shares in 4 hours and match VWAP. Okay. Third can be buy 1000 shares in next 1 hour. These are the examples of execution algorithms, like sell straddle with a total of 220 rupees, or maybe sell strangle with a total of 110 rupees. So these are the examples of execution algorithms. And time frequency mein there are three major classification. One is high frequency trading, second is medium frequency trading, and the third one is low frequency trading. So these are the various types of algorithms that we have. We'll start with back testing first. So what is the back testing? Okay, back testing simulates how a trading strategy would have performed in the past. So it goes in the past, it simulates and gives you the output. It tests with what strategy would have done in the past. Okay, this is what is the back testing. Okay, it is critical component of a system trading for assessing viability and effectiveness before deploying in real market. So before उसके पहले कि आप अपना पूरा पैसा लगाए, आप उसको पहला चेक करिए, पास्ट में जाके डेटा बराबर चेक करिए, उसको सिमुलेट करिए, बाद में आप उसको लाइव कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा वैलिडेट करने के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है नहीं है, इसमें पोटेंशियल है कि नहीं है, और इसमें पोटेंशियल फ्लॉस क्या है, इवेल्यूएट द रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल, इसमें ड्रॉडाउन कितना है, एज कितना है, ये सब आपको पता चलेगा। व्हाट आर द की क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स टू लुक एट व्हाइल एनालाइजिंग अ स्ट्रैटेजी। एक स्ट्रैटेजी को एनालाइज करने के पहले क्या क्या क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स आपको देखना चाहिए, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न कैगर, या तो एवरेज एनुअल रिटर्न। ओके, ये हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि हर एक का मतलब क्या है, कैसे चेक करना चाहिए। मैक्सिमम ड्रॉडाउन, ओके, सेकंड इज मैक्सिमम ड्रॉडाउन, थर्ड इज काल्मर रेशियो, कैगर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम ड्रॉडाउन इज द काल्मर रेशियो। ओके, फोर्थ इज द रिस्क पर ट्रेड पोजीशन साइज, फाइव विनिंग परसेंटेज, विन लॉस रेशियो, commission and slippages, time frame, okay, and leverage. These are key quantitative parameters to look at while analyzing a strategy. Let us talk about expectancy. Okay, काफ़ी लोग फोकस करते हैं कि विनिंग परसेंटेज क्या है, कि भाई हमारा एक्यूरेसी 75% है, हमारा एक्यूरेसी 80% है, हमारा एक्यूरेसी 90% है, लेकिन खाली एक्यूरेसी से काम नहीं होता है। आपका स्ट्रेटजी का ओवरऑल एक्सपेक्टेंसी क्या है, एक तो एक्यूरेसी परसेंटेज, और सामने जब भी आपका प्रॉफिट होता है तो कितना प्रॉफिट होता है, आपका लॉस होता है तो कितना लॉस होता है, जब भी इसको मल्टीप्लाई किया जाता है और रिकैलकुलेट किया जाता है, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेंसी। हम अभी अभी सीखेंगे कि ये एक्सपेक्टेंसी कैसे कैलकुलेट होता है और व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एक्सपेक्टेंसी इज द एवरेज अमाउंट यू कैन एक्सपेक्ट टू विन और लूज पर ट्रेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एक्सपेक्टेंसी इज एवरेज, ओके, एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है, विनिंग परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय एवरेज विन माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लॉस, उसका जो नेट रिजल्ट आता है उसको एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। और कुछ भी स्ट्रैटेजी यूज़ करने के पहले आपको एक्सपेक्टेंसी चेक करना चाहिए। एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव हो तो ही वो स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाहिए, नेगेटिव हो तो स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करना चाहिए। मोंटे कार्लो सिमुलेशन, मतलब देखो कोई भी एक पाथ होता है, हर बार वो पाथ रिपीट नहीं होता है। जैसे पास्ट 20 साल में जैसे रिटर्न डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अगले 20 साल में वो सेम हो सकता है कि रिटर्न डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, मतलब जो रिटर्न का जो सीक्वेंस जो है वो आगे पीछे हो सकता है। रिटर्न का सीक्वेंस आगे पीछे होने के कारण आपका फ्यूचर ड्रॉडाउन, आपका फ्यूचर इक्विटी कर्व डिफरेंट हो सकता है, और वो कैलकुलेट करने के लिए आपको मोंटे कार्लो सिमुलेशन करना चाहिए। मोंटे कार्लो सिमुलेशन, it tests how the order of trades impacts the performance। okay, ट्रेड्स आपने कर लिए, समझो 360 252 जनरली वर्किंग डे होते हैं, उसका समझो 252 रिटर्न डेज आया आपका। अब ये 252 डेज कैन कम इन अ डिफरेंट ऑर्डर, जरूरी नहीं है कि लास्ट ईयर जो ऑर्डर में आया वही ऑर्डर में अगले साल आएगा या उसके साल के बाद आ गया। तो डिफरेंट ऑर्डर को चेक करने के लिए मोंटे कार्लो सिमुलेशन होता है।
what it answers, what if the same trades occur in a different order. Okay, that is what Monte Carlo simulation answer. What is the method? Method is take all historical trades or returns, randomly shuffle them. Okay, recalculate portfolio growth, drawdown and risk matrix, repeat thousands of times. You can repeat 1,000 times or maybe 10,000 times. You have to the more the merrier. जितना ज़्यादा करोगे इतना better है. That will give you better idea of how your strategy can look in future, and see the range of possible outcomes. What are the key insights that it can give? It gives key insights into distribution of return remain identical. No new data is introduced. Only path dependency is tested. Okay. Distribution of return is identical. What is tested is only path dependency. Okay, reveals how luck timing affects the results. Okay, let us see pictorial representation of some Monte Carlo simulation कैसा दिखता है. जैसे एक स्ट्रैटेजी हम लोग ने यहाँ पर बैक टेस्ट किया जिसका ड्रॉडाउन 6% था, लेकिन जब भी हमने 1000 सिमुलेशन किए ड्रॉडाउन के, तो हमने पाया कि 95% ऑफ द रिटर्न्स आर विद इन 12%. मतलब 95% ऑफ द रिटर्न्स आर विद इन ड्रॉडाउन्स आर विद इन 12%. मतलब जो 6% जो एवरेज ड्रॉडाउन था या मैक्स ड्रॉडाउन था वो 12% चला गया. और देयर वर सर्टेन ड्रॉडाउन्स बियॉन्ड 95% आल्सो. मतलब ड्रॉडाउन हैज गॉन एज हाई एज 20%. दिस इज आउटलायर आउट ऑफ 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जो बोलते हैं 95%, उसके बाहर था रिटर्न. तो ये चेक किया कि जो बैक टेस्ट ड्रॉडाउन था 6.1 था, 95 परसेंटाइल ऑफ ड्रॉडाउन ऑफ द मोंटे कार्लो सिमुलेशन इज 12%. मतलब डबल हो गया. ठीक है, तो ये एक इक्विटी कर्व है मोंटे कार्लो सिमुलेशन फॉर 10,000 सिमुलेशन. ये जो सेंटर का जो ब्लैक है वो ओरिजिनल इक्विटी कर्व है ऑफ द बैक टेस्ट स्ट्रैटेजीज. लेकिन उसका जब भी 10,000 सिमुलेशन किया गया, देखो कैसे डिफरेंट पाथ ले रहा है. कभी कोई नीचे से चालू कर रहा है, फिर वो कैचअप कर रहा है, कोई ऊपर से चालू कर रहा है, बाद में ड्रॉ डाउन कर रहा है. अल्टीमेटली हर एक जन पहुंच यहीं पे रहे, लेकिन हर एक का जो रास्ता जो है अलग है पहुंचने का. तो मोंटे कार्लो सिमुलेशन क्या करता है, वो चेक करता है पाथ डिपेंडेंसी, आपको पॉसिबल आउटकम्स देता है कि ये मोटा मोटी ये पाथ ले सकता है, वो पाथ भी ले सकता है. डिफरेंट पाथ के मतलब आपका इक्विटी कर्व या ड्रॉ डाउन जो है डिफरेंट पाथ ले सकता है. ये चेक करना बहुत ज़रूरी है. और ये चेक क्या करता है, मोंटे कार्लो सिमुलेशन ये चेक करता है. सो द पेरिल्स ऑफ ट्राइंग टू टाइम द मार्केट. व्हाट आर द पेरिल्स? मिसिंग द मार्केट्स बेस्ट डेज. ओके, हो सकता है कि आप मार्केट में नहीं हो, मार्केट का बेस्ट डे आ गया. इफ़ यू मिस दैट बैड डे बेस्ट डे. ओके, तो ये स्लाइड दिखाता है कि इफ़ यू दिस इज द इंडेक्स रिटर्न फॉर एग्जांपल ऑफ लास्ट 30 years 7.82%. If you just miss 10 best days, your return comes down to 5%. If you miss 20 days, your return comes to 3.323 days. If you miss 30 best days, your return comes to 1.68. If you miss 40 days, your return comes to 0.3. And if you miss 50 days, your return goes negative. मतलब करीबन 30 साल में अगर आपने 50 बड़े दिन मिस कर दिए ना, तो आपका रिटर्न नेगेटिव आ जाएगा. भाई 30 साल में दिन कितने होते हैं? ट्रेडिंग डे करीबन 7,500 ट्रेडिंग डे होते हैं 30 साल में. उसमें अगर आपने पौना टका 7.5 का पौना टका होगा मोटा मोटी 50 दिन. अगर आपने वो मिस कर दिया ना, तो आपका पूरा रिटर्न. इसके लिए टाइमिंग नहीं करना चाहिए. वही हम लोग ने, अगर काफ़ी लोग खुद का इंटेलिजेंस यूज़ करेंगे कि भाई हम अच्छा रिटर्न मिस नहीं करेंगे, हम मंदी से बाहर रहेंगे. ओके, हम मंदी से बाहर रहेंगे तो अच्छा रिटर्न तो आ ही जाएगा. लेकिन दूसरा फैक्ट ये है कि जो गुड डेज एंड बैड डेज क्लस्टर में आते हैं, साथ में आते हैं. जब ये मंदी रहता है ना, तभी अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे दिन भी आते हैं. लेकिन अच्छे दिन काफ़ी आते हैं मंदी में. जैसे 2008 का हुआ, 2020 का हुआ, 2022 के बीच में भी देखो काफ़ी अच्छे दिन आए. हम लोग ने एक इन्वेस्टमेंट एल्गोरिथम बनाया जिसका नाम रखा है CW82 सिग्मा, जिसमें टेक्निकल स्टडीज़ के बेस पे, प्राइस, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी के बेस पे हम लोग ने रूल्स बनाए. वो एल्गोरिथम के बेस पे, वो रूल बेस अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो कैसे आपका लाइफ आसान हो जाता है, ये मैं आपको ये एज अ डेमोन्स्ट्रेशन ये स्ट्रैटेजी दिखा रहा हूँ. ये कोई स्ट्रैटेजी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है. ये आप मान के चले, ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए आपको एक समझाया जा रहा है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं. ये एल्गोरिथम का पूरा बेस टेक्निकल है. प्राइस एक्शन है,
वॉलेटिलिटी स्टडी है, मोमेंटम स्टडी है, इसमें कुछ भी फंडामेंटल इनपुट हम लोग ने यूज़ नहीं किया है। ओके, ये एल्गोरिदम का नाम हम लोग ने दिया है CW2 सिग्मा, ये हमारा प्रोप्राइटरी एल्गोरिदम है। More than 18,000 people are using this CW2 sigma on a discretionary fashion. Completely systematic है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे देखो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट एल्गोरिदम भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम जो बेस्ड है वो पूरा बेस्ड है बॉलिंजर बैंड पे। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ बॉलिंजर बैंड। जो भी टेक्निकल स्टडीज कर रहे हैं वो शायद जानते होंगे बॉलिंजर बैंड्स क्या होता है, लेकिन जिनके लिए जो नहीं समझ पाते उसके लिए मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। बॉलिंजर बैंड क्या है? इट्स अ टेक्निकल इंडिकेटर। जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो टेक्निकल एनालिसिस के लिए, उसमें इंडिकेटर्स सेक्शन में जाके आप बॉलिंजर बैंड करके इंडिकेटर है वो उसको देख सकते हो। दिस टेक्निकल इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग प्राइस वॉलेटिलिटी, कंसिस्ट ऑफ 3 lines. It has 3 lines. Okay, middle band which is simple moving average. Okay, अपर बैंड विच इज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे फ्रॉम सिंपल मूविंग एवरेज, मतलब एक मिडिल बैंड हो गया, एक 2 स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया अपर, एंड एक 2 स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया डाउन। लोअर बैंड मतलब मिडिल बैंड हो गया, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अप, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों? क्योंकि 95% ऑफ द डेटा आर विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब यू विल बी एबल टू कैप्चर 95% ऑफ प्राइस एक्शन विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, दिस इज हाउ इट लुक्स। ये कैंडलस्टिक चार्ट है, ये प्राइस है, ये मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज, ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का बैंड है, इसको वॉलेटिलिटी बैंड भी बोलते हैं। जैसे जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ता है ये बैंड एडजस्ट होता है ऑटोमेटिक, और ये लोअर बैंड है, ये अपर बैंड है। तो ये इतना हम बैकग्राउंड समझेंगे ये बॉलिंजर बैंड क्या होता है। इसको अपर बैंड है, ये मिडल बैंड है, ये लोअर बैंड है। ठीक है, अभी लेट्स गो टू द रूल्स ऑफ द एल्गोरिदम। जैसे मैंने बोला एल्गोरिदम मतलब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, रूल बेस्ड होता है, और क्लियरली डिफाइंड रूल्स के हिसाब से ही सब चलता है। तो लेट अस डिफाइन द रूल्स फर्स्ट। व्हाट आर द रूल्स ऑफ दिस एल्गोरिदम? फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिवर्स क्या है? इसका यूनिवर्स है NSE लिस्टेड स्क्रिप्ट, जिसमें जो लिक्विड स्क्रिप्ट है करीबन 400-500 स्क्रिप्ट, इतना लिक्विड नहीं है, इसके लिए हम लोग ने सॉर्ट किया है, करीबन 1500 लिक्विड स्क्रिप्ट है NSE का, वो हमारा ट्रैकिंग यूनिवर्स रहेगा। ठीक है, तो एक जो 6000 अपना BSC का था उससे तो कम हो गया 1500, तो एक ट्रैकिंग यूनिवर्स ही आपका कम हो गया। पोजीशन साइज कितना लेंगे, ये भी हमेशा लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि कभी कोई कम शेयर लेता है, कोई ज़्यादा शेयर लेता है, कभी किसी का पोजीशन साइज बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी किसी का पोजीशन साइज बहुत कम हो जाता है। तो हम कितना शेयर लें? 2% ऑफ द कैपिटल। मानो आपका कैपिटल 1 लाख रुपया है, तो आप 2000 रुपये का एक शेयर लेंगे, 2000 रुपया वैल्यू का। ओके, जितना भी भाव है उसके हिसाब से क्वांटिटी लेंगे। समझो आपका मानो आपका कैपिटल 10 लाख रुपया है, तो आप 20,000 रुपये का शेयर लेंगे। तो दिस इज अ पोजीशन साइज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2% ऑफ कैपिटल। बाय दिस लॉजिक योर पोर्टफोलियो में हैव 50 स्टॉक्स। 2% के हिसाब से 50 स्टॉक, मतलब 100% ऑफ द टाइम आपका इन्वेस्टमेंट अगर हो गया तो आपके पास 50 स्टॉक हो सकते हैं। एंट्री रूल्स क्या रहेंगे? व्हाट आर योर एंट्री रूल्स? एंट्री रूल्स इज वीकली क्लोज अबव अपर बॉलिंजर बैंड। जैसे मैंने बताया, एक मिडिल बैंड था, एक अपर बैंड था, एक लोअर बैंड था। तो वीकली क्लोज अगर अपर बैंड के बाहर जाता है, वीकली मतलब फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे वीक होता है, वीकली क्लोज मतलब फ्राइडे अगर अपर बैंड के बाहर क्लोज होता है तो आपको लेना है। बॉलिंजर बैंड का एक स्टैंडर्ड सेटिंग है 20/2। अगर आप इंडिकेटर में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, तो 20/2 स्टैंडर्ड सेटिंग है, लेकिन ये एल्गोरिथम के लिए आपको सेटिंग करना है 50 और 2। मिडिल बैंड जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो 50 है, और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो। ठीक है, ये हो गया आपका एंट्री। अगर आपने एंट्री तो ले लिया, अभी एग्जिट कैसे करेंगे? एग्जिट का भी 3 रूल है। फर्स्ट रूल, इनिशियल स्टॉप लॉस ऑफ 20%। ओके, आपने लेने के बाद अगर स्टॉक क्लोज होता है 20% बिलो योर परचेस प्राइस, तो आपको एग्जिट ले लेना है आपको। लेकिन फ्राइडे तक वेट करना है, मंडे टू फ्राइडे कुछ नहीं करना है, फ्राइडे वेट करेंगे। अगर भाव 20% नीचे क्लोज आता है तो आपको मंडे मॉर्निंग एग्जिट कर देना। ये आपका फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल ऑफ एग्जिट इज क्लोज बिलो 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। भाई ऐसा होता है कि हर बार अपना स्टॉप लॉस तो होगा नहीं, हो सकता है हमारे लेने के बाद भाव बढ़ने लगे,
तो भाव बढ़ने के बाद भी कभी एग्जिट करना है तो उसका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म होना चाहिए। तो ये उसका ट्रेलिंग स्टॉप मैकेनिज्म है, क्लोज बिलो 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये एक दूसरा रूल हो गया। थर्ड इज, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्टॉक में पर्टिकुलर न्यूज़ आ जाता है और एक वीक में काफ़ी गिर जाता है। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर वीक में काफ़ी गिर जाता है लेकिन 100 वीक के ऊपर रहता है तो अपना स्टॉप लॉस होगा नहीं। लेकिन अगर क्लोज बिलो एटीआर हो गया, एवरेज ट्रू रेंज 14 एंड 1.8 टाइम्स, 14 डेज एटीआर 1.8 टाइम्स, अगर उसके नीचे एक वीक के अंदर अंदर क्लोज हो गया तो आपको मंडे मॉर्निंग ये बेच देना है। तो मैं एक बार रूल रिवाइज कर लेता हूँ। एंट्री रूल्स क्या है? पोजीशन साइजिंग एंट्री रूल है, वीकली क्लोज अबाउ अपर बॉलिंजर बैंड 58-2, लो स्टैंडर्ड डेविएशन है 50, मिडल सिंपल मूविंग एवरेज है। पोजीशन साइजिंग 2% ऑफ द कैपिटल, ये हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक होता है। 50 स्टॉक के बाद कुछ भी सिग्नल आता है लेने का, वो आपको नहीं लेना है, आपको स्किप करना है। जब तक कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है, जगह नहीं बनता है, आपको नया स्टॉक नहीं लेना है। तो आपके पोर्टफोलियो मैक्सिमम 50 स्टॉक रहेंगे। एग्जिट रूल रहेगा, initial stop loss 20%, second closing below 100 week exponential moving average, third is close below ATR 14 1.8। ये तीनों में से जो पहला हो जाएगा वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये कंप्लीट सिस्टम है। ये सिस्टम हम लोग ने लिया है, अनहोली ग्रेल्स करके एक बुक है बाय निक राइज, उसमें ये सिस्टम डिफाइन किया गया है। तो वहाँ से, और ये जो खुद यूज़ करते हैं ये सिस्टम, ऐसा वो क्लेम करते हैं कि 30 साल से वो यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल है। अभी देखते हैं ये बैक टेस्टिंग क्या है। इसका बैक टेस्टिंग, अगर 2011 से हमने उसको बैक टेस्ट किया, अगर ये रूल के हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिजल्ट्स क्या आया? रिजल्ट्स ये आया, उसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आया 23% रिटर्न आया। एवरेज एनुअल रिटर्न आया 28%। एक्सपोजर इन द मार्केट 90% ऑफ द टाइम। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मार्केट में मंदी होता है तो 50 स्टॉक मिल नहीं पाते हैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो वो केस में मार्केट कैश पे लिक्विड में चला जाता है। तो 10% ऑफ टाइम मार्केट वो सिटिंग ऑन लिक्विड। ओके, मतलब जैसे 10 साल में 1 साल वो लिक्विड में बैठा हुआ था, 9 साल वो इन्वेस्टेड था। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने रहे? 704। ये करीबन हम लोग ने मार्च 2025 तक हम लोग ने बैक टेस्ट किया हुआ है। 704 ट्रेड इन हाउ मेनी ईयर्स? लगभग 14-15 ईयर्स। दैट मीन्स 4 ट्रेड्स अ मंथ। एक महीने में 4 ट्रेड, और 2% के हिसाब से एक ट्रेड हो तो एक महीने में 8% चर्निंग होता है। 4 ट्रेड ले 2% के हिसाब से 8% इन्वेस्टमेंट होता है। विनिंग परसेंटेज 37%। देखो आपने 37% टाइम ही वो विनिंग परसेंटेज है उसका। फिर भी ये प्रॉफिटेबल सिस्टम है। लूजिंग ट्रेड इज 62% ऑफ टाइम इट्स अ लूजिंग ट्रेड, लेकिन फिर भी ये प्रॉफिटेबल है। क्यों प्रॉफिटेबल है? क्योंकि उसका एवरेज परसेंटेज पर विनिंग ट्रेड इज 131। जब भी वो जीता है या जब भी उसका प्रॉफिटेबल ट्रेड हुआ है तो 131% कमाया है। जब भी लॉस हुआ है करीबन एवरेज 14% उसने खोया हुआ है। इसके कारण उसका एज पॉजिटिव है। जो हम लोग ने आगे पढ़ा कि एज क्या होता है, एज कैसे निकाला जाता है। विनिंग परसेंटेज, एवरेज विनिंग माइनस लूजिंग परसेंटेज एंड लूजिंग एवरेज लॉस पर विनिंग ट्रेड एंड एवरेज लॉस पर लूजिंग ट्रेड। आपको ये मल्टीप्लाई करके एज निकालना है। ठीक है, एज निकल गया तो आपको समझ में आ गया कि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी है। 37% टाइम के 37% टाइम ही वो सक्सेसफुल होता है, फिर भी वो कमाता है। क्योंकि जब भी कमाता है तभी 131% कमाता है, तोड़ता है तभी 14% टूटता है। तो उसका पे ऑफ रेशियो जो है, इसको पे ऑफ रेशियो बोलेंगे। तो 131 डिवाइडेड बाई 14 इज 9 टाइम्स। जब भी कमाता है तभी 9 रुपये कमाता है, जब टूटता है तभी 1 रुपया टूटता है। और उसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन 39% है। ये उसका ईयरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न्स है। और करंट ईयर अभी तक उसका नेगेटिव चल रहा था टिल मार्च के बाद थोड़ा इंप्रूव हुआ है, लेकिन वो हमने बैक टेस्ट में इंक्लूड नहीं किया हुआ है। ठीक है, गो टू द नेक्स्ट। हम लोगों ने कुछ एग्जांपल दिखाया कि ये सिस्टम के बेसिस पे पास्ट में क्या ट्रेड हो सकते थे और क्या क्या ये सिस्टम ने पिकअप किया है। ये सिस्टम ने पिकअप किया है सीजी पावर करीबन 23 अक्टूबर 2020 को 25 रुपया और 95 पैसे में उसका बाई सिग्नल आया। कभी उसका इनिशियल स्टॉप लॉस जो 20 रुपया था कभी हुआ ही नहीं। कभी उसने 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे बंद नहीं दिया और कभी एटीआर के नीचे बंद नहीं गया। और ये भाव बढ़ता गया। करीबन 850 का भाव हुआ। तो ये सिस्टम कभी टॉप में नहीं बेचेगा, टॉप से जब नीचे आएगा तभी बेचेगा।
छोटे मोटे करेक्शन को अलाउ करता है। देखो छोटे मोटे करेक्शन हुए, अलाउ हुआ। बाद में जब ये ज़्यादा गिरा, एक ही वीक में वो 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे चला गया, करीबन 552, तो करीबन 2000% तक उसमें रिटर्न आया। पूरा उसने राइड किया। विनर को जैसे हमने बताया, विनर को राइड करना चाहिए। तो ये एक पूरा एग्जांपल है विनर को कैसे राइड किया जा सकता है। एंड कंप्लीटली रूल ड्रिवन अप्रोच से राइड किया जा सकता है। इसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है। परचेज प्राइस क्लियर है, स्टॉप लॉस क्लियर है, और करीबन करीबन 20% के स्टॉप लॉस से इसमें 2000% रिटर्न आया। तो ऐसे कुछ ट्रेड सब मिला के आपका टोटल रिटर्न होगा। और जैसे हमने बोला राइट हैंड जो पॉजिटिव स्क्यू, जो हमने बात किया कि कोई ओकेजनली बड़ा बड़ा विनर आता है, तो कुछ कुछ जैसे ये विनर जेबीए में उसने पकड़ा, करीबन 8 जनवरी 2021 में 61 रुपीज़ में बाय आया। उसका कभी इनिशियल स्टॉप लॉस नहीं हुआ, भाव बढ़ता गया वापस गिरा, वापस बढ़ा, वापस गिरा, वापस बढ़ा, वापस बढ़ा, वापस गिरा, और लास्ट में उसने 727 में या 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे बंद दिया, एग्जिट हुआ। 2024 में एग्जिट हुआ, तो करीबन करीबन 3 साढ़े 3 साल तक उसने होल्ड किया और करीबन 1000% इसमें रिटर्न आया। इसमें 2% एलोकेशन था इनिशियल, ठीक है। सिमिलरली अवंती फीड देखो 3291%, 15 रुपये में 2013 में रिटर्न आया, उसको बाई किया गया था और लगभग बेचा गया 2018 में। 15 रुपये का सीधा 500 रुपये तक उसने 5 साल तक होल्ड किया और रिटर्न आया। तो ये जो मैंने बोला लॉन्ग टर्म का गेम है, लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए। और कैसे रिटर्न आता है, कैसे मल्टीबैगर होते हैं, कैसे विनर्स को राइड किया जाता है, ऐसा कुछ हम लोगों ने एग्जाम्पल्स दिए। एक मोर एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा ही कंपनी आता है। ये ब्रिटानिया जैसा ब्लू चिप कंपनी भी देखो, उसने पिकअप किया लगभग 26 अप्रैल 2013 में 283 के भाव में पिकअप किया और 7 सितंबर 2018 में बेचा यहाँ पर करीबन 3000 के भाव में। तो ये 300 में चीज ली, 3000 में बेची। ब्रिटानिया जैसी ब्लू चिप कंपनी भी इसमें बाय सिग्नल में आया, उसने लिया। जैसे हर बार प्रॉफिट नहीं होता है, लॉसेस भी होते हैं। एक लॉस का एग्जांपल है असमवीरा माइनकेम, 519 में बाय सिग्नल आया, उसका इनिशियल स्टॉप लॉस था 20%, यहाँ 414 में स्टॉप लॉस हो गया, वो एग्जिट कर दिया। सेकंड लॉस का एग्जांपल स्वान एनर्जी देखिए, स्वान एनर्जी सिग्नल आया 13/12/2024 को, यहाँ पर बाय हुआ, अपर बैंड के ऊपर गया, लेकिन वो इनिशियल स्टॉप लॉस जो 20% था उसके नीचे गया, बंद हुआ, तो 589 में बेच दिया। तो लेट अस लुक एट सम ऑफ द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। ओके, एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी देखेंगे, एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे। दोनों कंबाइन करने के बाद क्या रिजल्ट आता है वो देखेंगे। इन्वेस्टिंग और ऑप्शन स्ट्रैटेजीज और अदर लॉन्ग शॉर्ट फ्यूचर स्ट्रैटेजी कंबाइन करने के बाद क्या रिजल्ट आता है, वो फ्रेमवर्क क्या है, उसके बारे में भी थोड़ा आगे जाके बात करेंगे। ओके, तो लेट अस टेक स्ट्रैटेजी नंबर 1, दिस इज एन ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी। ओके, the rules, since it is an algorithm driven, it's a rule based strategy. Short Nifty call and put प्रीमियम क्लोजेस्ट टू 0.2%। 0.2% कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे अभी निफ्टी का भाव है 25,000, तो उसका 0.2% होता है 50 रुपया, मतलब 50 रुपये के आजू बाजू का प्रीमियम 0.2% है। जिस दिन निफ्टी 30,000 हो जाएगा तो 60 रुपीज़, अगर 20,000 होगा तो 40 रुपया, ये 0.2% होता है। एट द मनी ऑप्शन 0.2% के आजू बाजू का जो एट द मनी है, उसको 920 को बेचना है और एग्जिट लेना है 315 को। ओके, एंट्री कभी लेना है 920 को, एग्जिट कभी लेना है 315 को। भाव क्या होना चाहिए, 0.20 ऑफ निफ्टी। ओके, एग्जाम्पल, इफ द निफ्टी इज 25,000, सेल 25,000 इंटू 0.2, 50 रुपीज़ कॉल एंड पुट बोथ। कॉल एंड पुट आपको दोनों बेचना है, ठीक है। तो कभी ये स्टैंगल हो सकता है, कभी स्टेडर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डेज टू एक्सपायरी। कोई भी टारगेट नहीं है, खाली स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस क्या है, प्लस स्टॉप लॉस 20% ऑन ईच लेग। अगर आपने 50 रुपये में बेचा है तो 60 रुपये का स्टॉप लॉस है, कॉल पुट दोनों का। कोई भी टारगेट नहीं है। 3:15 हो जाए, स्ट्रैटेजी को बंद कर देना है, काट लेना है पोजीशन जो भी है। करीबन ये विदाउट हेजिंग का स्ट्रैटेजी है, तो इसके लिए करीबन 3.25 लाख रुपया इसमें मार्जिन लगता है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन हमेशा ये रहता है कि आप हेज करके करो, तो आधा मार्जिन में भी काम हो जाएगा, लेकिन हेजिंग का कॉस्ट के कारण थोड़ा रिटर्न कम होगा, वो आपको सिमुलेट करके देखना है। दिस सेटअप कैन बी एग्जीक्यूटेड इन निफ्टी बाय हैविंग अप्रॉक्सीमेटली 3.7 लाख रुपीज़ मार्जिन, ठीक है। कभी चलाना है ये चलाना है खाली वेडनेसडे और थर्सडे को, क्योंकि नियर टू द एक्सपायरी स्ट्रैटेजी ज़्यादा परफॉर्म करता है। क्योंकि अगर सोमवार, मंगलवार और फ्राइडे क्या होता है, एक्सपायरी दूर है तो ज़्यादा थेतालिके नहीं होता है, ऑप्शन का भाव कम नहीं होता है, तो आप अगर सेलिंग में हो तो आपको शायद इतना फ़ायदा
नहीं होगा, इसीलिए वेडनेसडे और थर्सडे को ही करना है। थर्सडे जनरली एक्सपायरी डे है और वेडनेसडे इज़ 1 डे टू एक्सपायरी। आगे जाके एक्सपायरी डे चेंज होगा तो वो हिसाब से आपको एक्सपायरी डे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये 1 डे टू एक्सपायरी है, ये एक्सपायरी डे है। देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट ये रहा, 3,70,000 मार्जिन, करीबन 2019 से हमने इसको टेस्ट किया है, लगभग 4 लाख रुपए प्रॉफिट। एवरेज डेज PNL 623, इसमें 1% स्लिपेज लिया हुआ है, तो आपको उसका चिंता करने का जरूरत नहीं है। मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर द डे इज 8,900 रुपीज़, मैक्सिमम लॉस इज 4,000 रुपीज़, विनिंग परसेंटेज 53% है, ठीक है। टोटल ट्रेडेड डेज 662, एवरेज ट्रेड PNL 311, टोटल ट्रेड्स 1324, एवरेज ट्रेड पर डे करीबन 2, मैक्सिमम विनिंग स्ट्रिक्स 14 डेज, मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रिक्स 7 डेज, एवरेज एनुअल रिटर्न 58,000 पर एनम, मतलब 4 लाख पे लगभग 15% का इसका रिटर्न आया मोटा मोटी। Max drawdown is 18,000. Calmer is 3.21, which is supposed to be very good. Average profit on positive days 3,145. Average loss on a losing day 2222. Day expectancy 623. Day expectancy ratio 0.28. तो ये एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी का स्ट्रैटेजी है, सेलिंग स्ट्रैटेजी है। करीबन 15-16% रिटर्न इसमें दिख रहा है विद अ ड्रो डाउन ऑफ मोटा मोटी 4.5%. तो दैट गिव्स अ Calmer of 3.21. आई होप यू लाइक्ड इट एंड आप अपना रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चेक करके करिएगा। और बैक टेस्ट लिया है 2019 मार्च से लेके 10 जुलाई 2025 तक। आई होप यू अंडरस्टैंड द सेलिंग स्ट्रेटजी। नाउ लेट्स गो टू अ बाइंग स्ट्रेटजी। ओके, व्हाई आई एम टेकिंग अ बाइंग स्ट्रेटजी, बिकॉज हम लोग आगे सीखा कि डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, नॉन कोरिलेशन भी होना चाहिए, वो भी हम आगे सीखेंगे। तो हम एक डिफरेंट स्ट्रेटजी लेंगे, सेलिंग स्ट्रेटजी है तो एक अभी बाइंग स्ट्रेटजी लेंगे, ठीक है। Strategy 2, buying strategy. Let us understand the rules of the game. You have to select at the money call and put at 920. आपको ट्रेड नहीं करना है, you just have to select at the money call and put at 920 and add them to your watch list. Watch list में add करना है, ठीक है। and end time is 315. पहले 920 को वॉच लिस्ट करना है, एंट्री कभी करना है आपको, एंट्री करना है वेट फॉर द ब्रेकआउट बिफोर बाइंग। यू हैव टू वेट फॉर द ब्रेकआउट। व्हाट इज अ ब्रेकआउट? ब्रेकआउट जब भी कोई भाव के ऊपर जाता है उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन, जो भी है वो भाव के ऊपर या नीचे जाएगा तो उसको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बोलते हैं। बाय द लेग्स ओनली व्हेन दे गो अप बाय 30%। मतलब समझो वो माना कि एट द मनी 100 रुपये का भाव है और वहाँ से 30% ऊपर गया, 130 का भाव हो गया तो आपको लेना है। कॉल हो गया तो पुट हो गया, जो भी हो गया उसको आपको लेना है। दिस इंडिकेट्स अ ब्रेकआउट। ओके, स्टॉप लॉस क्या रखना है? स्टॉप लॉस रखना है 50%। जो भाव से आपका एंट्री होता है उसका भाव 50%। जैसे 100 का चीज़ 130 हो गया, आपको एंट्री लेना है। वो भाव 65 रुपीज़ हो गया तो आपको एग्जिट ले लेना है। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। इफ द स्टॉप लॉस इज हिट, सेलेक्ट द ATM स्ट्राइक अगेन एंड ऐड टू द वॉच लिस्ट एंड रिपीट द स्टेप 2 and 3 वंस। मतलब ये री एंट्री एक बार करना है। एक बार स्टॉप लॉस हो गया तो वापस ATM जाओ, वहाँ कॉल एंड पुट, वहाँ पर भी आप एंट्री एक बार कर सकते हो, ठीक है। दिस हैज़ टू बी डन ओनली ऑन एक्सपायरी डे। ये आपको विदाउट एक्सपायरी डे काम नहीं करना है। खाली एक्सपायरी डे बाइंग स्ट्रेटजी है और खाली एक्सपायरी डे पे ही चलाना है। एग्जीक्यूट दिस सेटअप विथ अ कैपिटल ऑफ 1 लाख। वाई आई एम सेइंग प्रीमियम तो इतना लगता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ने 1 लाख रखा क्योंकि उसमें ड्रॉ डाउन के लिए भी कैपिटल रखना पड़ता है। यू माइट हैव टू रिप्लेनिश योर कैपिटल। 20-25 हज़ार का प्रीमियम लगता है तो 2-3 बार शायद 20-25 हज़ार खत्म हो सकता है। इसके लिए आपको ड्रॉ डाउन के लिए भी पैसा रखना है। इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपया रखना चाहिए इसके लिए, ठीक है। दिस सेटअप कैन बी परफॉर्म विद अ मार्जिन ऑफ 20,000। कीप रिमेनिंग फॉर द ड्रॉ डाउन, ठीक है। बाइंग का क्या स्टेटिस्टिक्स रहा? 20 मोटा मोटी 20,000 रुपये का मार्जिन लगता है। टोटल प्रॉफिट 4,82,000 ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 5 years। एवरेज डेज PNL 1481, मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर द डे 66। देखिए अब सिंगल डे में 20,000 रुपये का 67,000 भी हो गया और सिंगल डे में 20,000 रुपये का जीरो भी हुआ है, ठीक है। विन परसेंटेज 50% ऑफ टाइम, इट्स अ वेरी गुड विनिंग परसेंटेज। इफ यू आर विनिंग 50% टाइम इन बाइंग स्ट्रेटजी, आई थिंक इट्स अ गुड विनिंग परसेंटेज। टोटल ट्रेडेड डेज 326, एवरेज ट्रेड PNL 765,
टोटल डेट 631, एवरेज ट्रेड पर डे मोटा मोटी 2, मैक्सिमम विनिंग स्ट्रिक 6 डेज, मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रिक 5 डेज, एवरेज एनुअल रिटर्न है 68,000 रुपीज़, करीबन करीबन 1 लाख रुपये में सालाना 68,000 रुपीज़ बना है पास्ट में, और ड्रॉ डाउन भी 62, इसीलिए हमने ड्रॉ डाउन देखा 62,000 हुआ, इसलिए बोला 20,000 तो प्रीमियम में जाएगा, ये ड्रॉ डाउन के लिए भी कैपिटल रखना पड़ता है, तो ये 1 लाख के नीचे काम नहीं करना चाहिए इसमें। कालमार है 1.1, एवरेज प्रॉफिट पॉजिटिव डेज 9345, अगर नेगेटिव डे है तो 6383, डेज एक्सपेक्टेंसी इज 1481, डेज एक्सपेक्टेंसी रेशियो इज 0.25, तो ये पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है, अच्छा स्ट्रेटेजी है। ये दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो क्या होता है वो भी एक बार देख लेते हैं। बाइंग और सेलिंग मिला के करीबन 4 लाख रुपए में दोनों स्ट्रेटेजी हो जाता है। 4 लाख रुपए यहाँ बनता है, 4,482 यहाँ बनता है, टोटल मोटा मोटी 9 लाख रुपए बनता है, और उसका एवरेज डे एक्सपेक्टेंसी करीबन करीबन यहाँ पर है 6314 और 4615, उसका एवरेज एनुअल रिटर्न करीबन 1,27,000 रुपया है, मतलब 4 लाख पे 1,27,000, मतलब मोटा मोटी ये 25% पर एनम की स्ट्रैटेजी ये दोनों मिला के हो सकता है। एक चीज़ आपने नोटिस किया कि पहले में ड्रॉ डाउन था 18,000, दूसरे में ड्रॉ डाउन था 62,000, लेकिन ये दोनों को जब कंबाइन किया तो ड्रॉ डाउन 80,000 नहीं हुआ, 61,000 हुआ, ड्रॉ डाउन कम हुआ। ये होता है क्यों, वो आगे आके आपको समझाता हूँ कि ड्रॉ डाउन कम क्यों हुआ। हालांकि रिटर्न कम नहीं हुआ, रिटर्न दोनों का ऐड हुआ, 58,000 60,000, ये 127, ड्रॉ डाउन कम हुआ, रिटर्न बढ़ा। ये फ़ायदा हुआ बाइंग और सेलिंग कंबाइन करने का। ये क्यों होता है उसका एक पूरा फ्रेमवर्क है, उसके बारे में आगे जाके बात करेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नहीं है तो वापस एक बार देखिए, इसको बार बार देखिए, और चाहिए तो कम स्पीड से देखिए, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों स्ट्रेटजी को साथ में रखा तो मोटा मोटी ये 32% पर एनम की स्ट्रेटजी है, करीबन 15% ड्रॉ डाउन, तो करीबन 2 का कालमर के आजू बाजू होता है। एवरी ईयर प्रॉफिटेबल है, पहले बहुत ज़्यादा रिटर्न था 2020-21 में, फिर धीरे धीरे कम होते गया, ठीक है। सबको साथ में रखेंगे तो आपको समझ में आएगा बता की स्ट्रेटेजी। ये उसका क्यूमुलेटिव रिटर्न का ग्राफ है, वर्स्ट 5 ड्रॉ डाउन से। वर्स्ट 5 ड्रॉ डाउन देखो 1 2 3 4 5 कभी हुआ 2021 में हुआ, 2022 में, 23 में हुआ, वापस 2025 में हुआ। ये ड्रॉ डाउन का चार्ट है, अंडर वाटर प्लॉट, और ये डेली रिटर्न्स का प्लॉट है, ठीक है। दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट। वर्स्ट ड्रॉ डाउन, वर्स्ट 10 ड्रॉ डाउन क्या रहा, 15%, 12%, 12%, कितना दिन लगा उसको रिकवरी होने को, 176 डेज, 182 डेज। टोटल रिटर्न क्या रहा, एवरेज रिन्यूअल रिटर्न क्या रहा, शार्प क्या रहा, सोटिनो क्या रहा, जो हम लोग ने आपको समझाया अगर सोटिनो रेशियो क्या था, शार्प रेशियो क्या था, एवरेज ड्रॉ डाउन क्या रहा, एवरेज डाउन डेज क्या रहा, अल्सर इंडेक्स, सेरेनिटी इंडेक्स, ये काफ़ी दूसरे भी पैरामीटर्स हैं। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन परसेंटेज क्या रहा, लॉन्गेस्ट DD डे 182 डेज तक ये ड्रॉ डाउन में रह सकता है, ऐसा दिखा रहा है वो। आगे आपको उसमें मोंटे कार्लो सिमुलेशन भी मैंने सिखाया था, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये बेस्ट डे 16% वाला रहा, वर्स्ट डे 6% वाला रहा, बेस्ट मंथ, वर्स्ट मंथ, बेस्ट ईयर, वर्स्ट ईयर, एवरेज अप मंथ, हर एक का स्टैटिस्टिक यहाँ दिया हुआ है। विनिंग मंथ लगभग 54%, विनिंग क्वार्टर 81%, मतलब मोटा मोटी 81% क्वार्टर। अगर आप देखो ये कैसे इम्प्रूव हो रहा है। एवरेज अप मंथ 1.58%, एवरेज डाउन मंथ 1%। अभी स्टैटिस्टिक्स है, विन डेज कितना 54% ऑफ द टाइम, 54% विनिंग डेज है, लेकिन विनिंग मंथ भी 54 ही है। विनिंग क्वार्टर कितना है, विनिंग क्वार्टर मोटा मोटी 81% है, और विनिंग ईयर कितना है, 100% विनिंग ईयर है। मतलब ये साल भर स्ट्रैटेजी चलाएंगे तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये पॉजिटिव में बंद आए, ठीक है। तो ये सब डिटेल एनालिसिस करना ज़रूरी है बिफोर यू पुट इन योर हार्ड अर्न मनी इनटू ट्रेडिंग। इसलिए ये मास्टर क्लास आपको दिया गया है। वीडियो काफ़ी लंबा है, तो आप ब्रेक ले लेके देख सकते हैं, लेकिन देखना ज़रूरी है, और धीरे धीरे देखना ज़रूरी है, बार बार देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ डेटा पॉइंट्स ऐसे दिए गए हैं जिस पे आपको बार बार पॉन्डर करना पड़ेगा, और आपको बार बार उसके बारे में सोचना पड़ेगा। यू माइट हैव टू गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड। अगर आप अपने बिजनेस के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में सीरियस है तो आपको ये टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और ये टाइम मैं स्पेंड नहीं बोलूँगा, उसको मैं बोलूँगा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार के होते हैं, टाइम का होता है और पैसे का होता है। ये आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट है, और इसमें काफ़ी मेरे 25 साल का जो अनुभव है, जो निचोड़ है, वो उसमें मैंने डाला हुआ है।
ठीक है। इसको मैं गीता का सार बोलता हूँ। हम लोग ने अभी तक जो भी पढ़ा, जो भी सीखा, जो भी समझा, उसका सार अगले आधे घंटे में है। तो ये आधा घंटा बहुत डिफाइनिंग होने वाला है आपकी लाइफ में। तो आप और फोकस करिएगा, चाहिए तो ब्रेक ले लो, बाद में आराम से देखो, लेकिन ये आधा घंटा बहुत ध्यान से ध्यान दो। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये आपको एक हेज फंड माइंडसेट देगा। एक आप हेज फंड खुद कर सकते हो, बना सकते हो, हेज फंड की तरह ट्रेड कर सकते हो, वैसा ये पूरा कंटेंट है। और इसके लिए मैं ग्रो और उसकी टीम को काफ़ी बधाई देता हूँ कि ऐसा कंटेंट वो क्रिएट कर पा रहे हैं अपने यूज़र्स के लिए और पब्लिक के लिए एट लार्ज। ओके, सो इसमें होता क्या है कि इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, हम लोग ने पहले देखा। लेकिन हम लोग ने ये भी देखा कि इक्विटी का रिटर्न काफ़ी लंपी आता है, कभी 2-2, 5-5, 10-10 साल रिटर्न नहीं आता है। तो वो केस में क्या करना चाहिए? जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि हर साल कुछ ना कुछ पैसा बनना चाहिए, ठीक है? तो जो फ्रेमवर्क जो मैं बात कर रहा हूँ, उसका मैं नाम दिया है मैंने 4 पिलर्स ऑफ ऑल वेदर रिटर्न। ऑल वेदर रिटर्न मतलब क्या है? कि भाई सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश हो, रिटर्न आना चाहिए। तेज़ी हो, मंदी हो, साइडवेज़ हो, अपना जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है, जो ट्रेडिंग में लगा है, उसमें कुछ न कुछ रिटर्न आना चाहिए। तो वो रिटर्न कैसे पाया जा सकता है, इसका ये फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क के मोटा-मोटी 4 पिलर है, ठीक है? उसका पहला पिलर है डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा पिलर है नॉन कोरिलेशन, तीसरा पिलर है लिवरेज, चौथा पिलर है हेजिंग। ये 4 मोटे-मोटे पिलर है जिससे आप ऑल वेदर रिटर्न अचीव कर सकते हो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पिलर जो रिटर्न जनरेटिंग पिलर है वो है लिवरेज। सो लिवरेज के कारण कोई एक चीज़, जैसे मैंने आप लिवरेज का मैं एग्जांपल दे दूँ। अगर आप समझो कोई बिल्डर के पास गए और आपने एक फ्लैट बुक किया जिसका वैल्यू है 1 करोड़ रुपया। बुकिंग अमाउंट आपने 10 लाख रुपया दिया, एग्जांपल 10 लाख रुपया दिया। मानो ये फ्लैट का भाव 1 करोड़ का 1 करोड़ 10 लाख हो गया। तो आपका मुनाफा कितना हुआ? 10 लाख रुपया हुआ। लेकिन परसेंटेज टर्म में आपका मुनाफा क्या हुआ? परसेंटेज टर्म में आपका मुनाफा 100% हुआ। क्यों 100% हुआ? क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट तो 10 लाख रुपया था, बाकी का पैसा आपको धीरे-धीरे देना था, बाद में देना था। तो ये 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करके आपने 1 करोड़ की चीज़ परचेज़ की, उसका 10% भाव बढ़ा तो आपका रिटर्न 100% हो गया। ये हुआ क्यों? क्योंकि आप 10 टाइम्स लीवरेज थे। 1 करोड़ की चीज़ आपने 10 लाख में बुक किया फ्लैट। यही चीज़ अगर मानो 1 करोड़ का फ्लैट बुक किया 10 लाख रुपया देके और उसका भाव 90 लाख रुपया हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 10 लाख वाइप ऑफ हो गया, आपका कैपिटल पूरा वाइप हो गया। तो लिवरेज जो है वो दो धारी तलवार है, दोनों साइड काम करती है, रिटर्न एनहांस भी करती है और रिटर्न इवापोरेट भी हो जाते हैं। तो वो उसको कंट्रोल करने के लिए, रिस्क को कंट्रोल करने, तो हमने ये समझा कि लिवरेज से रिटर्न तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन रिटर्न के साथ बढ़ता है रिस्क, लिवरेज के साथ बढ़ता है रिस्क। उसको कंट्रोल कैसे करें? उसको कंट्रोल करने के 3 पिलर है। तो रिटर्न का 1 पिलर है और रिस्क को कंट्रोल करने का 3 पिलर है। सबसे पहला हेजिंग। कुछ भी आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी कर रहे हो, फ्यूचर स्ट्रैटेजी कर रहे हो, कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो सामने कुछ ना कुछ हेज में ऑप्शंस लेके चलना चाहिए और हेज हेज करके चलना चाहिए। तो ये हो गया हेजिंग। Secondly, diversify. The moment you diversify, your risk reduces. The statistical fact है diversification leads to risk reduction. ठीक है, डाइवर्सिफाई कैसे किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। फाइनली नॉन कोरिलेशन, मतलब अगर दो असेट या दो रिटर्न स्ट्रीम या दो स्ट्रैटेजी नॉन कोरिलेटेड है तो रिस्क रिड्यूस होता है। तो रिस्क रिडक्शन के 3 तरीके हैं, एक हेजिंग, एक डाइवर्सिफिकेशन, एक नॉन कोरिलेशन। और रिटर्न का पिलर है लिवरेज। हम वन बाय वन एक एक पिलर देखेंगे, उससे क्या फ़ायदा होता है, वो फ्रेमवर्क को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो हम पूरा अभी सीखेंगे अगले आधे से पौने घंटे के अंदर। ठीक है। इट इज सेड दैट द ओनली फ्री लंच इज डाइवर्सिफिकेशन। ओके, डाइवर्सिफिकेशन इज द ओनली फ्री लंच। आपको कुछ कॉस्ट नहीं चुकाना पड़ता है डाइवर्सिफिकेशन के लिए। डाइवर्सिफिकेशन कैन बी अचीव। हाउ डाइवर्सिफिकेशन कैसे अचीव किया जा सकता है? इट कैन बी अचीव्ड by diversifying to different asset. What is an asset? Real estate is an asset. Gold is an asset. Silver is an asset. Equity is an asset. Options strategy is a category. Again, it can be qualified as asset. Bond is an asset. अलग अलग commodities, different agriculture commodity, live cattle, coffee, tea, सब asset है. ठीक है? You can diversify into instruments. Okay? Instruments बोलो तो Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty, option, equities, gold, silver. Again,
ये इंस्ट्रूमेंट हो गए, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हो गए, इसमें डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। देन यू कैन डाइवर्सिफाई इनटू स्ट्रैटेजी। जैसे हम लोग आगे देखा, हम लोगों ने तीन स्ट्रैटेजी देखा, एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज देखा, दो ऑप्शन स्ट्रैटेजी देखा, ऑप्शन में भी एक बाइंग का स्ट्रैटेजी देखा और एक सेलिंग का स्ट्रैटेजी देखा। तो ये हो गया डाइवर्सिफिकेशन इनटू वेरियस स्ट्रैटेजीज। तो डाइवर्सिफिकेशन इनटू असेट्स, डाइवर्सिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट, डाइवर्सिफिकेशन इनटू स्ट्रैटेजीज, देन यू कैन अचीव डाइवर्सिफिकेशन टू टाइम फ्रेम। आप जैसे हम लोगों ने देखा, टाइम फ्रेम कैन बी टिक बाय टिक से लेके मंथली टाइम फ्रेम तक कुछ भी कर सकते हो। टिक बाय टिक से लेके 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, कुछ ये पूरा टाइम फ्रेम डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। ठीक है। द नेक्स्ट काइंड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन यू कैन अचीव इज थ्रू जियोग्राफीज। जैसे हम अब एक इंडिया की बात कर रहे हैं, आप यूएस मार्केट ट्रेड कर सकते हो, आप चाइनीज मार्केट ट्रेड कर सकते हो, ब्राजीलियन मार्केट ट्रेड कर सकते हो, हांगकांग के मार्केट ट्रेड कर सकते हो, जापान के मार्केट ट्रेड कर सकते हो। तो ये जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन हो गया। ठीक है। मैं आपको जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ, ये कैसे रिस्क रिड्यूस होता है। जैसे आप समझो भी भारत में 1947 के पहले भारत में थे, और 1947 में जब भी भारत इंडिपेंडेंट हो गया, तभी देश के दो हिस्से हो गए, इंडिया और पाकिस्तान। तो जो इंडिया में थे वो इंडिया में रहे और कुछ लोग पाकिस्तान चले गए। अभी जो पाकिस्तान गए, अगर उनका प्रॉपर्टी इंडिया में था तो पूरा चला गया, और जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए लेकिन प्रॉपर्टी पाकिस्तान में था, वो प्रॉपर्टी पूरा चला गया। लेकिन अगर उनका एक प्रॉपर्टी इंडिया और एक प्रॉपर्टी पाकिस्तान होता और डाइवर्सिफाई होता तो शायद बच जाते। वैसे कभी इमोशनल जोग्राफिकल टर्मोल हो जाए, जैसे यूक्रेन में हो गया अभी, उसके पहले श्रीलंका में हुआ, उसके पहले काफ़ी कंट्री में टर्मोइल हुए, सीरिया में हुआ। अगर आपका पूरा असेट्स, आपका पूरा वेल्थ वहाँ पर है और आप डाइवर्सिफाइड नहीं हो तो रिस्क बढ़ जाता है। इसके लिए जैसे वेल्थ बढ़ता है वैसे डाइवर्सिफिकेशन जियोग्राफिकली भी करना चाहिए। ठीक है। असेट्स और स्ट्रैटेजी डाइवर्सिफिकेशन का इम्पैक्ट क्या आता है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर समझो, मान लो हाइपोथेटिकली आपके पास एक असेट है और उसका ड्रॉडाउन 19% है। समझो एक असेट है, उसका ड्रॉडाउन 19% है। ये उसका रिटर्न प्रोफाइल है, कैसे ऊपर से नीचे गया, वो फिर वापस ऊपर आया, कैसे रिटर्न आया। तो ये पिक टू ट्रफ उसका समझो 19% है। अब इफ यू कंबाइन विथ अदर नॉन कोरिलेटेड असेट जिसका ड्रॉडाउन भी 19% है, बट अगर ऐसे सो डिफरेंट, फिर नॉन कोरिलेशन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। समझो एक बंदा कमाता है, दूसरा बंदा नहीं कमाता है। ठीक है, ये एक सीन हो गया। तो ये नेगेटिव कोरिलेशन हो गया कि ये कमाता है, ये नहीं कमा रहा है, ये नहीं कमा रहा है, ये कमा रहा है। ठीक है। तो मतलब स्ट्रैटेजी पकड़ लो, बंदा पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। लेकिन अगर समझो रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि कभी दोनों कमा रहे हैं, कभी दोनों नहीं कमा रहे, कभी ये कमा रहा है, कभी ये कमा रहा है, कभी ये तोड़ रहा है, कभी ये तोड़ रहा है, इसका अगर आप कोरिलेशन रन करेंगे एक्सेल में, देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड कोरिलेशन। what you have to do is you have to populate all the returns and you have to run correlation function amongst those returns. If the correlation is 0, then it is said to be non-correlated. Please do not confuse non-correlation with negative correlation. When I am saying non-correlation, I am talking about 0, माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 0 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये फैक्ट ये है कि अगर 19% कोई एक असेट ड्रॉ डाउन होता है और आप डाइवर्सिफाई करते हो अक्रॉस वेरियस नॉन कोरिलेटेड असेट, नॉन कोरिलेशन के बारे में आगे भी बात करूंगा मैं। अगर आप डाइवर्सिफाई करते हो अक्रॉस 100 असेट, तो आपका ड्रॉडाउन जो 19 था ना, वो 2% हो जाएगा। अगर आप ऐसे 10,000 असेट में डाइवर्सिफाई करते हो, तो 10,000 असेट क्या हो सकता है? डिफरेंट कंट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल जियोग्राफी, सेकेंड डिफरेंट मार्केट्स, डिफरेंट असेट्स, डिफरेंट टाइम फ्रेम, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। अगर आप पूरा दुनिया ट्रेड कर रहे हो और जिसका रिटर्न प्रोफाइल हर एक का अलग है, नॉन कोरिलेशन है, एडिक्वेटली डाइवर्सिफाइड है, इंडिया भी है, यूएस भी है, चाइना भी है, हैंगसेंग भी है, जापान भी है, यूरोप भी है, ब्राज़ील भी है, साउथ अफ्रीका भी है, उसमें गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, कैटल भी है, सब है। हर एक में एक स्ट्रैटेजी भी है, फ्यूचर्स भी है, ऑप्शंस भी है। ये सब अगर जमा करो, अगर 10,000 स्ट्रैटेजी अगर आपका बन जाता है, 10,000 रिटर्न स्ट्रीम बन जाता है, तो आपका ड्रॉडाउन 0.10% हो सकता है। मतलब वर्चुअली यू कैन बी प्रॉफिटेबल 365 डेज ऑफ द ईयर, और आपका ड्रॉडाउन मोटा मोटी 0.10% होता है। दिस इज द पावर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। ओके, सेकेंड वी टॉक अबाउट नॉन कोरिलेशन। जिसे मैंने नॉन कोरिलेशन आगे समझाया,
कोई एक बंदा कमा रहा है, एक बंदा नहीं कमा रहा है, एक स्ट्रैटेजी कमा रहा है, एक स्ट्रैटेजी नहीं कमा रहा है, दूसरा स्ट्रैटेजी नहीं कमा रहा है, वो कमा रहा है, कभी दोनों साथ में कमा रहे हैं, कभी दोनों साथ में पैसा तोड़ रहे हैं। अगर ऐसा कोई रिटर्न स्ट्रीम है, उसका कोरिलेशन निकाला जाए तो इसका कोरिलेशन नियर टू ज़ीरो आएगा। ज़ीरो आएगा तो ज़ीरो कोरिलेशन से डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क रिड्यूस होता है, वैसे नॉन कोरिलेशन से भी रिस्क रिड्यूस होता है। तो ये एक स्टैटिस्टिकल फैक्ट है which shows how the volatility of the portfolio changes as you add the asset. If you had assets that have 0.6 correlation, if you have assets with 0.6 correlation to the other asset, the risk will go down only by 15%. अगर correlation 0.6 है तो risk can go down only by 15% as you add more assets, but that's about it. Even if you add 1,000 assets, but if they are correlated with each other 0.6, your risk will get reduced only by 15%. ठीक है, तो आप 15-20 असेट ऐड करो कि आप 1000 असेट ऐड करो, अगर कोरिलेशन 0.6 है तो रिस्क खाली 15% ही कम होगा। ये स्टैटिस्टिकल फैक्ट है। You can diversify into 1,000 stocks and it will only reduce the risk by only 15% since the average stock has about 0.6 correlation to another stock. If, however, you are combining assets that have an average zero correlation, then by the time you diversify only into 15 assets, अगर zero correlation है, and by the time you diversify across only 15 assets, okay, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि if you have 0.6 correlation and even if you diversify across 1,000 assets, you will reduce the risk only by 15%. But if you are correlated only zero, your correlation is zero, and only if you diversify across 15 such assets, you can cut the volatility by 80%. Your volatility can go down by 80%. Therefore, by holding uncorrelated asset, I can improve my risk return ratio by a factor of 5 through diversification. Diversification 15% risk reduce करता है, लेकिन non correlation increases the I would say reduces the drawdown and reduces the risk by a factor of 5, which is around 80%. तो नॉन कोरिलेशन समझना बहुत ज़रूरी है, नॉन कोरिलेशन असेट्स फाइंड करना ज़रूरी है, वो असेट्स को साथ में रन करना ज़रूरी है। तो ये स्लाइड रे डालियो की एक बुक है प्रिंसिपल्स करके, आप जरूर पढ़िएगा, उसमें स्लाइड दिखाया गया है। इसको ये स्लाइड को उसने होली ग्रेल बोला है कि अगर इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में कुछ भी होली ग्रेल है तो दिस इज इट। ओके, व्हाट इट सेज इज if assets are 0.6 correlated with each other, then you can reduce risk only by annual portfolio standard deviation. You can reduce only by 15%. As the non-correlation increases, the standard deviation also decreases. And as you approach zero correlation, and if you diversify across 20 assets, what happens is when you have only one asset, your risk to return is 0.25, for example, and the probability of losing money in a given year is 40%. As you diversify across 20 assets, this 0.25 goes to 2.5, मतलब it increases by the factor of 10. Okay, risk to reward 10 times increase होता है, और probability of losing your जो 40% था, it reduces to 1%. मतलब virtually, if you run 15 assets, probability of losing year is almost nil. It's near to nil, मतलब आपका साल नेगेटिव नहीं जाएगा। इसलिए मैंने बोला ये आप वीडियो आप ध्यान से देखिए तो आप हेज फंड भी बना सकते हो, हेज फंड भी रन कर सकते हो, और हेज फंड की तरह ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकते हो। लिवरेज जैसे मैंने समझाया, leverage is a double-edged sword. It enhances return, at the same time it increases risk. Okay, so let us understand how leverage enhances the return. Okay, this is a slide which shows return of a very popular hedge fund manager called Jim Simons. Medallion करके उनका फंड है, उसका रिटर्न प्रोफाइल है, approximately 60+% return for last 34 years average. How have they achieved this return? If you compare the return which were unleveraged, the image illustrates a synthetic example of a system returning 0.015% per day annualized for 30 years with no leverage. The compounded annual return is 4%. अगर leverage use नहीं करते हैं तो करीबन 4% रिटर्न है on the basis of 0.015% return per day.
लेकिन अगर सेम सिस्टम को 12.5 टाइम लिवरेज किया जाता है तो आपका रिटर्न हो जाता है 60%. What it essentially means is this is not about creating system that maximize returns. Okay, it is not about return maximization. It is about creating system that maximizes access to the leverage. If you are running systems which gives you more access to the leverage, for example, an option buying strategy with 20,000 premium, you can trade 10 lakh worth of Nifty. That means you are leveraged 50 times. Like one option selling strategy, for example, a hedge strategy, you just deploy 1 lakh rupee margin. With 1 lakh rupee margin, you are able to trade Nifty, which is worth 10 lakh rupees. You are 10 times leverage. So buying options gives you more leverage. At the same time, it gives you more risk. Okay. So it, as I will repeat it, this is not about creating system that maximizes returns. This is about creating system that maximizes access to the leverage while controlling risk. Okay, while controlling risk is the most important part. If there was ever a magic bullet, this is it. So this paragraph is the most important paragraph of the entire presentation. Okay, आपको ये समझना है और इसको बार बार आपको रिपीट करना है. और अगर आपको समझ में नहीं आता है, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ क्वेरी ऑन ग्रो प्लेटफॉर्म, वी विल रिप्लाई एंड वी विल मेक यू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो दिस इज अ रिटर्न 4% रिटर्न विदाउट लिवरेज. The more the leverage, the higher the return. Okay, the moment you're 12x leverage, your return goes to 60%. That is what happened with Renaissance Fund. They were leveraged 12.5 times, approximately 13 times. But as I said, leverage is a double-edged sword, so you have to control the risk. And one famous example how over leverage can kill people is a very famous example. And there was a company called Long Term Capital Management, and they went bankrupt. They went bankrupt because they were over leveraged. They were essentially doing arbitrage. That means a locked in profit. They were playing in spreads, but since they were leveraged 25 times, when the spread increases, they could not provide for mark to mark losses and they had to liquidate their position, and that is why they went bankrupt. So if you are over leveraged, there is a possibility your account can blow up. और ये आपको ध्यान रखना है. तो return is decided by leverage, and the more the access to the leverage, more the return, but you have to control the risk through three pillars, which is hedging, diversification, and non-correlation. Okay, so leverage is a double-edged sword that you have to understand. Let us understand how to use leverage. Okay, so I have given some backtested reports. This is a backtested report of uh, long only strategy. Okay, where you are just investing and not leveraging at all. This is the backtested report, 37% return, 24% return. This is a long and short. You are playing both sides of the market, long and short as well. Again, this is a single strategy. This is a single strategy. Return 24%, drawdown 12%. Calmer of 2, Calmer of 1.5. The moment you go to multi strategies, as I suggested earlier, your return of course reduces, but your drawdown also reduces. So your risk adjusted return, which is Calmer, increases to 3.55. Now let us assume that as a person or as an organization, you are able to afford more risk than 4.73. Suppose you want to take 12% risk. Here, by taking 12% risk, you are able to generate only 24%. But by using multiple strategies, suppose you enhances your risk from 4.73 to 12.27. What it means is 12 divided by 4.73, which is equal to 2.6. You can leverage your strategies 2.6 times. Okay, you can utilize the leverage and lever your strategies to 2.6 times, and you will encounter the risk of 12%. But your return, with the risk of 12% return, here it was 24% return, but with 12% risk, here you are able to generate 43% because of the leverage. Why you were able to leverage? Because you are diversified across strategies. Since you are diversified across non-core strategies, your drawdown goes down. The drawdown goes down, probably you can take more risk. Taking 12% risk, you can generate 43%. This is how you should use leverage. And whatever said and done, whatever strategy we are showing, whatever we are discussing, remember always to hedge your strategies. Okay, the final pillar is hedging. Never do anything without hedging. When you're selling option, buy some option against that.
When you are running a portfolio, you can buy puts against that. And whatever we do, long short future, or whether you do options, or whether you do futures, or whether you investments, always hedge your bets. That what it does is, in order to avoid the risk of ruin, one should always hedge their positions. Okay. Being black swan protected gives peace of mind and the ability to fight another day. Moreover, it allows access to more leverage and achieve scalability. आप जितना ब्लैक स्वॉन इवेंट से इंसुलेटेड हो, प्रोटेक्टेड हो, इतना आप स्केल कर सकते हो. आप आराम से रात को पीसफुली सो सकते हो और आप स्केल भी कर सकते हो. One should try and develop trading strategies which have sufficient edge after providing for hedging cost. तो आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में इतना एज होना चाहिए कि हेजिंग कॉस्ट के बाद भी आपके पास कुछ रिटर्न बच जाए. There is a very famous quote by Larry Hite who says, I have two basic rules about winning in trading as well as in life. If you don't bet, you can't win. Okay. But if you lose all your chips, you can't bet. So essentially, you have to take a bet so that you can win. But if you lose your all chips, then you can't bet. That you have to keep in mind. So hedging always helps. No amount of observation of white swan can allow the interference that all swans are white, but the observation of a single black swan is sufficient to refute that conclusion. मतलब एक खराब इवेंट एंड आप बर्बाद हो सकते हो. तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि हर एक चीज़ आपको हेज करके चलना है, हेजिंग के सिवा काम नहीं करना है, और आपको ऐसी स्ट्रैटेजी चूज़ करनी है जिसमें एज काफ़ी हो, एज अच्छा हो, ताकि आपको हेजिंग कॉस्ट के बाद भी रिटर्न आए. ठीक है. आइए आप समझते हैं जो हम लोग ने अभी तक समझा उसको कैसे प्रैक्टिकली कर सकते हैं, कैसे कैपिटल अलोकेशन करके, पोजीशन साइजिंग करके, हाउ टू यूज दिस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, मल्टीपल टाइम फ्रेम, मल्टीपल स्ट्रैटेजी को कैसे कंबाइन करेंगे और उसका इम्पैक्ट क्या आता है. हर एक चीज़ हम लोग ने बैक टेस्ट किया है, उसमें काफ़ी कुछ हम लोग लाइव भी यूज़ करते हैं हमारे क्लाइंट्स के लिए और ख़ुद के लिए भी. तो ये कोई हाइपोथेटिकल चीज़ नहीं है, थियोरेटिकल नहीं है. इसमें काफ़ी कुछ चीज़ प्रैक्टिकली हम लोग इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, काफ़ी कुछ इम्प्लीमेंट करना बाकी है. मतलब काफ़ी 70-80% इम्प्लीमेंट हो चुका है, 10-20% अभी भी बाकी है. लेकिन इसको हम बोलते हैं फ्रेमवर्क. ओके. और उसको बोलते हैं मोनालिसा फ्रेमवर्क. उसको मोनालिसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें लग रहा है कि जो ये बन गया है, हम लोग 7 साल से मेहनत कर रहे हैं और उसके पीछे जो फ्रेमवर्क बना है, हम, मेरी कंपनी का नाम कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड CWA मोनालिसा. मोनालिसा वाई मोनालिसा? मोनालिसा इज़ अ पीस ऑफ आर्ट. ओके. बहुत फेमस पेंटिंग है मोनालिसा का. तो ये करते करते ये फ्रेमवर्क जो बन गया, एक पीस ऑफ आर्ट बन गया, इसलिए हम इसको CWA मोनालिसा फ्रेमवर्क बोलते हैं. माइंड वेल इट्स अ फ्रेमवर्क. आप उसमें अपनी स्ट्रैटेजी लगाइए, अपने आइडियाज़ लगाइए, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. लेकिन जो एक ट्रेडिंग स्पेस में जो हो सकता है, जितना भी पॉसिबिलिटीज़ है, उसमें काफ़ी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हम लोग ने इसमें कवर कर लिया है. तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस CWA मोनालिसा फ्रेमवर्क. ओके. उसके कंपोनेंट्स क्या-क्या है? नंबर 1 कंपोनेंट सिस्टम बेस्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट. जैसे हम लोग ने आपको CWA 2 सिग्मा का जो सिस्टम दिखाया, वो सिस्टम बेस्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट का सिस्टम है. तो कंपोनेंट नंबर 1 सिस्टम बेस्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट. कंपोनेंट नंबर 2 लॉन्ग शॉर्ट फ्यूचर्स ऑफ स्टॉक. ओके. स्टॉक के फ्यूचर्स जो है, देखो मार्केट में हमेशा इक्विटी में क्या होता है, तेजी में रिटर्न आता है. तो मंदी में आप क्या करोगे? तो व्हेन यू प्ले ओनली वन साइड ऑफ द मार्केट, तेजी में ही रिटर्न बनेगा. लेकिन इफ़ यू प्ले बोथ साइड्स ऑफ द मार्केट, मंदी और तेजी, तो आपका मंदी में भी रिटर्न बनेगा. तो तेजी मंदी दोनों खेलना चाहिए, इसीलिए लॉन्ग शॉर्ट फ्यूचर्स. ओके. लॉन्ग शॉर्ट फ्यूचर में क्या है? इट्स अ लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फ्यूचर सिस्टम. It can consist of multi-time frame, but a multi-time frame systems following mean reversion, market neutral, pair trading, directional strategies like trend following. It can be a combination of several system. मतलब ये एक सिस्टम में मल्टीपल टाइम फ्रेम, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स embedded है. The next is options. Options में भी देखो multiple rule based, multiple non correlated option strategies which broadly comprises directional, non directional, positional as well as intraday strategy. ये बेसिकली इसको एक साइमल्टेनियसली यूज़ करने के लिए हम लोग ने कैपिटल अलोकेशन मॉडल बनाया, उसके हिसाब से कैपिटल अलोकेट किया, उसमें इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट होते हैं स्टॉक्स को मार्जिन की तरह यूज़ किया, वो मार्जिन हम लोग ने लॉन्ग शॉर्ट फ्यूचर में और ऑप्शन में कैसे यूज़ किया, उसका पूरा एक फ्रेमवर्क आपको मैं दिखाता हूँ. ओके. लेट अस से यू हैव suppose you have 3 crore as a capital. Okay. 3 crore as a capital, out of which 2.5 crore आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट,
ये CWA ऑल कैप 35 करके हमारा एक स्मॉल केस पे एक मॉडल पोर्टफोलियो है। तो फॉर हाइपोथेटिकल पर्पस हम वी आर यूजिंग दोज एज अ बैक टेस्टिंग रिजल्ट। हालांकि ये लाइव है 27 महीने से, लेकिन एक बैक टेस्टिंग के हिसाब से हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। सेकेंडली 0.5 लाख रखा है लिक्विड के लिए, M2M मैनेजमेंट के लिए, ड्रॉडाउन के लिए। आपके पास 3 करोड़ रुपया है, 2.5 करोड़ का इक्विटी है। अगर उसमें 67% है आपको मार्जिन मिलता है, मतलब 33% हेयर कट के बाद मार्जिन मिलता है। आपको पता ही होगा हर एक ब्रोकर आपको स्टॉक के सामने जो हेयर कट के बाद मार्जिन देता है, तो मोटा मोटी आपके पास 1.67 मार्जिन हो गया। यहाँ पर 90% मार्जिन मिल गया 0.45, मतलब करीबन करीबन आपके पास 2 करोड़ मार्जिन हो गया। मतलब 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपने 2.5 करोड़ इक्विटी में लगाया, 50 लाख लिक्विड में लगाया, सामने आपको 2 करोड़ का मार्जिन अवेलेबल हो गया फ्यूचर्स के लिए। तो जो ट्रेड करते हैं उसको समझ में आ जाएगा ये कोलेटरल कैसे होता है, कैसे मार्जिन अवेलेबल होता है। नहीं है तो थोड़ा गूगल करिए, आपको समझ में आ जाएगा। मार्जिन यूटिलाइज हम कैसे करेंगे? मार्जिन यूटिलाइज करेंगे हम लॉन्ग शॉर्ट फ्यूचर में 1 करोड़ का, ऑप्शन में 1 करोड़ का, टोटल मार्जिन हम लोग 2 करोड़ का यूज़ करेंगे, मतलब 2.5 करोड़ हम लोग। तो ये पूरा फ्रेमवर्क जो है यूटिलाइज करने के बाद क्या टोटल बन रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इक्विटी ऑल कैप 35, ओके, उसका बैक टेस्टेड रिजल्ट क्या दिखा रहा है और क्या रिटर्न आ रहा है। कैपिटल एलोकेशन 2.5 करोड़ और उसका बैक टेस्टेड रिजल्ट दिखा रहा है 28% कैगर। इसका 27 महीने का लाइव रिटर्न करीबन 31% कैगर है। स्मॉल कैश प्लेटफॉर्म में आप जाके चेक कर सकते हो। तो ये हाइपोथेटिकल नहीं है, करीबन करीबन अचीव किया हुआ सिस्टम है। सेकंड लिक्विड का हम लोग ने प्रिजम्पशन किया है कि आप 6% पर एनम, मतलब हर महीना आप आधा % कमाते हो लिक्विड से, ये एजम्पशन है। थर्ड सिस्टम जो लॉन्ग शॉर्ट फ्यूचर का सिस्टम है उसमें 1 करोड़ का मार्जिन दिया है, 4 टाइम्स लीवर, मतलब करीबन 4 करोड़ का एक्सपोजर है। और स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग शॉर्ट दोनों साइड वो खेलता है। ये बैक टेस्टिंग रिजल्ट है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रिजल्ट 2020, 21, 22 में बहुत ज़्यादा रिटर्न था, 22, 23 में। अभी धीरे धीरे रिटर्न टेपर हो रहा है। लास्ट ईयर ओनली 19%, ये साल ओनली 8.5% का रिजल्ट है। तो ये लॉन्ग शॉर्ट फ्यूचर में 1 करोड़ का मार्जिन, 1 करोड़ में लगभग करीबन 4 करोड़ का एक्सपोजर, और एक फ्यूचर आप समझ लो 5 से 6 लाख के बीच में होता है। तो 50 से 60 स्टॉक में आप लॉन्ग शॉर्ट फ्यूचर कर सकते हो। देन दिस इज मल्टीपल ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, करीबन इसमें 50 ऑप्शन स्ट्रैटेजी का कॉम्बिनेशन है। 1 करोड़ का मार्जिन है, करीबन करीबन इसमें 32% कैगर का रिटर्न है, ऐसा बैक टेस्टिंग दिखाता है, ठीक है। तो 1 करोड़ हो गया ऑप्शंस में, 1 करोड़ हो गया लॉन्ग शॉर्ट फ्यूचर में, 2.5 करोड़ आपका इक्विटी में इन्वेस्ट हो गया, 50 लाख हो गया आपका लिक्विड में। तो उससे बनता है ये मॉडल विच इज कॉल्ड मोनालिसा मॉडल, ओके। इक्विटी में 2.5, लिक्विड में 0.5, टोटल कंबाइंड 3 करोड़। मार्जिन आपको अवेलेबल हो गया 1 करोड़ लॉन्ग शॉर्ट फ्यूचर के लिए, 1 करोड़ ऑप्शन के लिए। एक्सपोजर क्या रहा? 2.5 करोड़ एक्सपोजर इन द मार्केट। लिक्विड का 50 लाख एक्सपोजर, लॉन्ग शॉर्ट फ्यूचर का 4 करोड़ एक्सपोजर, ऑप्शन का 10 करोड़ एक्सपोजर। तो टोटल एक्सपोजर इन द मार्केट इज अराउंड 17 करोड़, ओके। 17 करोड़ इज द टोटल एक्सपोजर। टोटल पैसा आपका कैपिटल है 3 करोड़, टोटल एक्सपोजर है 17 करोड़। तो आपका लिवरेज कितना हो गया? 17 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 5.6 टाइम्स। जैसे मैंने बताया कि जैसे आप लिवरेज इंक्रीज करोगे आपका रिटर्न बम्प अप होगा, लेकिन रिस्क को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने मल्टीपल नॉन कोरिलेटेड सिस्टम्स यूज़ किया, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट, मल्टीपल टाइम फ्रेम एंड मल्टीपल स्ट्रैटेजीज। डाइवर्सिफिकेशन किया, नॉन कोरिलेशन यूज़ किया, हेजिंग को यूज़ किया। उसके बाद में रिजल्ट आया और फाइनल रिजल्ट ये आया कि हमारा रिटर्न जो है करीबन करीबन बैक टेस्टेड रिजल्ट्स ये आया कि भाई 54% रिटर्न विच इज़ वेरी वेरी हाई। वाई हाई रिटर्न? बिकॉज यू आर 5.6 टाइम्स लिवरेज। जैसे मैंने आगे भी दिखाया था कि अगर नॉन लीवर रिटर्न 4 होता है और 12.5 टाइम्स अगर आप लिवरेज होते हो तो आपका रिटर्न 60 तक जा सकता है। लेकिन रिटर्न के साथ क्या आता है? रिस्क आता है। तो रिस्क कैसे कंट्रोल करना है? डाइवर्सिफिकेशन से, नॉन कोरिलेशन से और हेजिंग से। और उसके कारण ये हो रहा है कि आपका ड्रॉडाउन है वो 13%, 14% तक सीमित रह गया। उसके कारण आपका कालमर जो हो गया वो करीबन करीबन 3.5 पौने 4 का कालमर हो गया। तो ये पूरा फ्रेमवर्क ऐसे इम्प्लीमेंट करना है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया है। इसके बेसिस पे आप अपना एक ट्रेडिंग फ्रेमवर्क डेवलप कर सकते हैं। और ये पॉसिबल क्यों हुआ? आपका रिटर्न बढ़ा और रिस्क कम हुआ, वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने हर एक सिस्टम को जब भी कोरिलेशन फंक्शन, मैंने जैसे ऑप्शन आपको बताया कि आप एक्सेल में जाके नॉन कोरिलेशन फंक्शन, आप कोरिलेशन फंक्शन आप टेस्ट कर सकते हो कि कौन सा रिटर्न किसके साथ कितना कोरिलेटेड है। इक्विटी इज कोरिलेटेड विद इक्विटी 1,
एग्जैक्टली परफेक्ट कोरिलेशन, लिक्विड के साथ परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, लॉन्ग शॉर्ट फ्यूचर के साथ मोटा मोटी नॉन कोरिलेशन, एंड ऑप्शन के साथ -0.1, वेरी लेस कोरिलेशन। और उसके कारण रिस्क कम हुआ, ड्रॉडाउन कम हुआ, इसके लिए कारण आपका काल्मर इम्प्रूव हुआ। सो ये पूरा एक फ्रेमवर्क था। यहाँ पर ये फ्रेमवर्क समझाने के लिए आगे का पूरा आपको समझाया गया, पूरा बैक टेस्टिंग समझाया गया, एल्गोरिदम क्या होता है, क्या टाइप के एल्गोरिदम्स आप यूज़ कर सकते हो, कौन से पैरामीटर यूज़ करने चाहिए, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव सब आपको समझाया। देन आपको कुछ इन्वेस्टमेंट की सिस्टम समझाई, आपको ऑप्शन की सिस्टम समझाई, कंबाइन करने से क्या फ़ायदा होता है वो समझाया, और एक पूरा CWA मोनालिसा फ्रेमवर्क कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके क्या कंपोनेंट्स है और कैसे उसको यूज़ किया जा सकता है टू एनहांस रिटर्न एंड रिड्यूस रिस्क, टू इम्प्रूव योर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। ये पूरा एक अच्छा सा वीडियो आपके लिए बन गया है। नाउ फाइनल जो उसका राउंड है ये है, व्हाट मेक्स अ गुड सिस्टमैटिक ट्रेडर। अगर आपको एक सिस्टमैटिक ट्रेडर बनना है तो व्हाट मेक्स अ गुड सिस्टमैटिक ट्रेडर, लेट्स टेक द क्वालिटी वन बाय वन। You have to be humble, okay? The moment you are arrogant, market punishes you. You have to be humble. You have to underestimate your own intelligence. You don't overestimate your intelligence. You have to underestimate your own intelligence, skill, and luck. Assume trading will go badly and be prepared. Don't try to be clever with the market, okay? You have to be absolutely humble. ये key takeaway है. Second key takeaway है, you have to be skeptical, okay? Don't blindly trust any broker, any trainer, or any trader, including myself. Trust but verify. You have to always verify. You have to be skeptical. So you have to be humble, you have to be skeptical, you have to be pessimistic. A lot of people will be wondering why मैं क्यों बोल रहा हूँ कि pessimistic होना चाहिए, आपको optimistic होने का सलाह देना चाहिए, लेकिन जब when it comes to ट्रेडिंग आपको थोड़ा पेसिमिस्टिक होना पड़ेगा। डू नॉट फुल्ली ट्रस्ट बैक टेस्ट, ओके? इवन वेल डिजाइंड वंस, द फ्यूचर इज रेयरली एज गुड एज द पास्ट। ये मेरा खुद का अनुभव है। जो बैक टेस्ट होता है उसको काफ़ी कम रिजल्ट फ्यूचर में आने का पॉसिबिलिटी रहता है। ये पॉसिबिलिटी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो यू हैव टू बी लिटिल पेसिमिस्टिक, यू हैव टू बी लिटिल स्केप्टिकल। नेगेटिव स्क्यू अवेयरनेस, आपको ये अवेयरनेस होना चाहिए कि सिस्टम में नेगेटिव स्क्यू भी हो सकता है। इफ़ यू मेक स्टेडी गेन्स विथ फ्यू लॉसेस, यू लाइकली हैव अ नेगेटिव स्क्यू स्ट्रेटजी दैट हैजंट ब्लोन अप। अगर आपको लग रहा है आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो और काफ़ी टाइम से प्रॉफिटेबल हो, तो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग होगा, कि आप अभी तक वो रिस्क एनकाउंटर नहीं किए हो और वो रिस्क आगे आ सकता है। दैट हैजंट ब्लोन अप येट, बट एडजस्ट योर रिस्क अकॉर्डिंगली। जितना जितना लंबा पैच जाता है प्रॉफिटेबल, उतना उतना पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है कि एक नेगेटिव स्क्यू आने का चांस बढ़ता है। तो आपको अपना रिस्क ऐसे एडजस्ट करना है। यू हैव टू बी थॉटफुल, अंडरस्टैंड व्हाई यू माइट बी मेकिंग मनी, नो योर मार्केट्स एंड know your rule. You have to know your market, you know your rules and understand why you are making money. ठीक है? तो ये एक पूरा फ्रेमवर्क है। एंड फाइनली बी थ्रिफ्टी मतलब फ्रूगल, मतलब कंजूसी करो थोड़ा। यू मस्ट नो आपका ट्रेडिंग कॉस्ट क्या है। ठीक है, ज़्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ज़्यादा ट्रेडिंग कॉस्ट डेफिनेटली आपको कॉस्ट करेगा, आपका रिटर्न रिड्यूस करेगा, आपका ड्रॉडाउन बढ़ाएगा। You have to be a little nervous, okay? You can't be overconfident. Only commit capital you can afford to lose, okay? You have to be nervous about the capital. You have to allocate only that capital you can afford to lose. Diversify widely across instrument and rules to limit exposure to single failures. Avoid low volatility, dangerous instruments. ठीक है? तो ये सब आपको करना है। And you have to be diligent in design, lazy in running. You have to be diligent in design, but lazy in running. Put the hard work upfront into designing a safe, robust system. Once designed, do not meddle, okay? Constant interference usually destroys performance. This is what you have to do. And finally, you have to be lucky. देखो, आफ्टर ऑल लक हमेशा एक रोल प्ले करता है आदमी का जीवन में। आप कितना ही हार्ड वर्क कर ले हो, लेकिन अगर आपका लक साथ नहीं देगा तो हो सकता है आपका एफर्ट रिवॉर्ड नहीं होगा। फाइनली यू हैव टू बी लकी। इवन डूइंग एवरीथिंग राइट, you might be unprofitable if chance turns against you. Quantify the risk, ensure you can cope with the downside. ये फाइनल टेक अवे था। एंड
दिस इज व्हाट इट टेक्स टू बी अ गुड सिस्टमैटिक ट्रेडर। आपको जैसे बोला CW2 सिग्मा का आपको सिस्टम चाहिए तो आपको गूगल का फॉर्म भरना पड़ेगा। करेक्ट ट्रेडिंग व्यू आईडी, करेक्ट ईमेल, करेक्ट मोबाइल नंबर हमें भेजिए, हम आपको एक्सेस दे देंगे। ट्रेडिंग व्यू में इनवाइट ओनली मोड पे ये इंडिकेटर अवेलेबल है जिसका नाम है CW2 सिग्मा। अगर आपको रेडीमेड सिग्नल्स चाहिए बेस्ड ऑन दिस इंडिकेटर तो आपको ये व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा CW2 सिग्मा, जिसका ये स्कैन दिया हुआ है। What is it gives you systematic equity investing strategy, entry and exit rule based on quantitative parameters, predefined position size and market universe, suitable for investing through weekly time frame, free access on TradingView by filling the Google form, and 18,000 plus subscriber already using it. And finally, फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कुछ भी इंक्वायरी है, ये फाइनल डिस्क्लेमर है, जो भी आप समझाए एजुकेशन पर्पस के लिए है। एंड आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके कुछ भी इम्प्लीमेंट करिएगा। एंड this is our contact details. My name is Rakesh Pujara. My Twitter ID is Rakesh Pujara1. YouTube is Rakesh Pujara1. WhatsApp ID, email, अगर कुछ भी कभी भी कुछ भी query हो, you can reach out to us. This is our website. And thank you very much for everything. आपने अगर ये वीडियो अभी तक देखा है तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का जर्नी ये वीडियो से आज चालू हो चुका है और आपको आगे जाके मेहनत भी करना है। और खाली ये जो 2-2.5 घंटे का वीडियो है ना, वो मेरा 25 साल का अनुभव का निचोड़ है। आपको धीरे धीरे शिप बाय शिप इसको गल्प करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है और उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप नए नए हो तो छोटे स्केल पे काम करिए, लर्निंग ज़्यादा करिए, कैपिटल कम यूज़ करिए, पूरा एक बार प्रॉफिटेबल होने के बाद स्केल अप करिए। दिस इज़ अ फ्रेमवर्क विच कैन एक्चुअली आपको हेल्प करेगा बिगिन करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए और स्केल अप करने के लिए। एज अ सक्सेसफुल system trader, as an algo trader, best wishes from my side. All the best to all of you. Thank you very much. This is Rakesh Pujara signing off. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.